Once again, a very good evening, everyone. I guess everybody can hear me and can see me properly. And is the screen visible, everyone? Yes or no, students? Kindly confirm me. Okay, thank you so much, Yogendra. Okay, we have your Arsh. Others, who all we have here? We have Aryaman, Laddu, nice name, Nisha, Rini, Sakshi, Saloni, Sanya, Saumitri, Shruti, Shubham, and some more people who are yet joining us. That's Aman Sharma. Right. Okay. Arun has also joined us. Fine. Am I audible, everyone? Clearly? Everyone say yes or no in the chat box, or you can turn on your mics if anybody is facing any issue. Great. So, how are you people? Everyone? Aman, Arsh, Arun, Ayushi, Sakshi, Saloni, Rini, Pammi, Nisha, Laddu. Everyone? Good. Great, great. Okay, we still have students to join us. Okay, guys, fine. See, I have two, three things to discuss with you. Every day, whenever you will be coming. Yes, Aman, say it, beta. You have your hand raised. Yes, yes, say it. Aman, I can see your hand raised. Do you have a question? Was it by mistake or you have some question that you are typing? Kindly confirm me that so that I can proceed further then. Okay. I assume there was no question. It was like it happened by mistake. Fine. Okay, I have two, three things to discuss with you people, everyone. देखिए, जब भी आप क्लास में बैठेंगे, everybody should be handy with their copies and pens. One thing. Everybody shall be having their running notes, right? And the second thing is, if you have some question, please raise your hand first, right? If you have some question, please raise your hand, use your chat box. And the third thing is, be attentive and be participating in the class, please. Okay, guys, as you people are not sitting in front of me, only when you participate, I'll get to know that you are understanding the concepts. Are these 3 points clear, everyone? And the first one is the most important one, that you shall be having a copy and the pen handy. Everyone, please. Okay. Ayushi says yes. Acha, nobody else understood this. Nobody? Only Ayushi? Ha, yes, it is your first class. Okay, great. Okay. So all those who are having their first class with me, okay, Nisha, and all those who have already attended one or two of my classes of another subjects, so they know it. And for the new ones, I have introduced the same again. Good evening, Shubham. Good evening, students. Good evening, everyone. Fine, guys. So we shall be starting with the thing that we are going to do today is your police act, UP Police Act. अब ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, आज आपकी बेसिक क्लास है या इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो उसमें मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर है बच्चों. ठीक है, तो बेसिक्स के साथ चलते हैं हम लोग. अब बेसिक्स में आई वॉन्ट टू आस्क यू पीपल अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. व्हाट इज एन एक्ट? व्हाट इज एन एक्ट? एक एक्ट क्या है?
सबसे पहली बात ना, हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हमें क्यों नहीं समझ आती हैं कुछ चीज़ें, जस्ट बिकॉज हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, जो बेसिक्स है ना वो ही क्लियर नहीं है. सो एनीबडी प्लीज, व्हाट इज एन एक्ट? यस. नाइस. क्या बात है. जब इसे प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो ये एक्ट बन जाता है. ग्रेट. वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड दैट. अभी सबसे पहले तो एक प्रपोजल जाएगा ना, तो व्हेन दिस प्रपोजल एंटर्स द पार्लियामेंट, just give me a minute, I have another student, I guess. Okay, it becomes a bill. Then this bill has to pass through both the houses. दोनों हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों से इसे मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है. एंड वंस इट passes, it is given to the president for his assent, and he gives his assent by signing it. So for his signatures. Acha, now my another question. Why do we ask only the president to sign it, not the prime minister? Why is president so important to our country? What position he holds in our country? क्या बात है, क्या बात है. एग्जीक्यूटिव हेड है. अब एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब, एग्जीक्यूटिव हेड है या एग्जीक्यूटिव हेड है, इट इज बोथ वेज करेक्ट. बट ये जो एग्जीक्यूटिव हेड है, इसका मतलब क्या है? ओके ग्रेट. आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं इसी कंसेप्ट को बहुत ही इजीली लेके जाना चाहती हूँ. देखिए गाइस, हम लोगों ने तीन चीजों के या थ्री पिलर्स के नाम सुने हैं. कौन से हैं ये थ्री पिलर्स ऑफ योर डेमोक्रेसी इन इंडिया? हम किनको बोलते हैं थ्री पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के? क्या बात है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है. अभी हमारे पास थ्री पिलर्स हैं. इनके बारे में हमने छोटी क्लासेस में तो 100% सुना होगा कभी. राइट, एसएसटी में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में इसके बारे में, कि दीज आर दी थ्री पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट और अ डेमोक्रेटिक बॉडी लाइक इंडिया. अच्छा, अब ये जो लेजिस्लेचर है, व्हाट इज इट्स वर्क? वेरी सिंपल लैंग्वेज, आई डोंट वांट एनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस, नथिंग. बहुत ही सिंपल सरल भाषा. टू मेक द लॉ. वेरी नाइस. टू मेक द लॉ. हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं. आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल, नो बडी ऑफ यू, टू गिव मी ऐसे भारी भरकम डेफिनेशंस. जस्ट बेसिक थिंग कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हाट आई एम आस्किंग. सिंपल, सरल भाषा में. तो बहुत अच्छा आंसर था ये, टू मेक द लॉ. ओके, तो ये लॉज मेकिंग पावर दी किसे हुई है हम लोगों ने? हम लोगों ने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑब्वियसली. तो वो किसके पास है? वेयर दिस पावर वेस्ट इज टू दी. Yes, I wanted to hear that too. Parliament and state legislature. अब पार्लियामेंट बनाती है वो लॉज जो आपके पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होते हैं. राइट. अब हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स के कुछ लोकल लॉज भी होते हैं. ठीक है. अच्छा, एनीबडी हियर फ्रॉम पंजाब स्टेट? गिव मी अ थम्स अप और एनीथिंग. यस और नो? एनीबडी? Nobody is here from Punjab. Okay, fine. So I'll tell you one thing. Like when I was staying there for some purpose, so there I witnessed two, three things. That the people there in Punjab are given a rebate on electricity over some units. That doesn't happen in our areas, our states, but it does happen in the state of Punjab. What they do, they give you a rebate, or simply
they'll waive off the electricity bill अगर you are using एक specified units तक, that is somehow I guess 300 units something, ठीक है. if you are using less than this ना, so you don't have to pay any bill. but क्या किसी और के local area में ये law है? if you are not from the state of Punjab, anybody? yes or no? the same 300 units वाला for 200 units, that if you are using below 200 units then it is free. Fine, great. ठीक है. for Delhi we have 200 units and for Punjab we have like 300 units का ये rebate. अब what is this? This is your local thing, यानी जो आपके लोकल लॉज हैं. अब ये कहाँ पास हुए हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में. अब ये ना तो आपको हरियाणा में मिलेगा, ना आपको गुजरात में मिलेगा, ना राजस्थान में मिलेगा, ना एमपी में मिलेगा, ना ही आपको साउथ की स्टेट्स में मिलेगा. तो ये क्या चीज़ है? दिस हैज़ एवरीथिंग टू डू विद देयर ओन स्टेट. कुछ लॉज आर मेड ओनली फॉर द लोकल लिमिट्स विच ओनली एक्सटेंड टू देयर ओन स्टेट, यानी जो उनके स्टेट तक ही एक्सटेंडेड होते हैं बस. एंड दीज लॉज आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ योर्स, राइट? देन फाइन. अब we had enough of this understanding. Basic understanding is what we all need. Fine. अच्छा, अभी हम मूव करते हैं एग्जीक्यूटिव पे. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो प्रेसिडेंट है will it fall under this head or this head? Okay. So it was who? Okay, Ayushi named it. Great. ठीक है. So you are saying that president is the executive head. What is the work of this executive body? Simple language. To implement the laws. कौन से laws को implement करने का काम है इनका? वेरी नाइस, वेरी नाइस. कि वो लॉज जो हमें पार्लियामेंट ने बना कर दिए हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का. और उसमें प्रेसिडेंट है हमारे हेड. देन इसके बाद हमारी क्या पुलिस ऑफिशियल्स ऑल्सो फॉल हियर? यस, पंचायत राज हो गए आपके, प्लस अदर लोकल जो आपके गवर्नमेंट्स हैं, राइट? आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपके उन लॉज को, पर्टिकुलर लॉज को पर्टिकुलर एरियाज में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं. ग्रेट. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर हमने मान लिया कि वो एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन हमें जो लॉज हमने पार्लियामेंट में बनाए उन्हें प्रेसिडेंट से साइन करवाने की क्या नीड है? जब यहाँ पे पार्लियामेंट में ऑलरेडी वो मेजोरिटी से पास हो चुके हैं. व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस कि हम उसे प्रेसिडेंट से मतलब वापस से साइन करवा के आ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ओके, सो यू आर सेइंग दैट पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और प्रेसिडेंट भी है. पर मैंने अभी 1 मिनट पहले पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है या आपके लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट है? तभी तो आप लोग बोल रहे थे कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी में फॉल करेंगे, ये एग्जीक्यूटिव हेड है. एनी रैशनल बिहाइंड दिस? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो असेंट दे रहे हैं कि जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट है, जो एक्ट पास हुआ है, ये अब से एक्ट बन जाता है बेटा. बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट कब होती है? जब उसे प्रेसिडेंट साइन करते हैं. कि अब से ये एनफोर्स होगा जब से
प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बट मैं यही पूछ रही हूँ कि प्रेसिडेंट उसे साइन करते ही क्यों है जब वो ऑलरेडी हमने पार्लियामेंट में पास करवा दिया है. व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड गेटिंग इट साइंड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ? व्हाई डू वी नीड दैट? Anybody? You were very close, Ayushi. Your attempt was also good. हाँ, you were hitting nearby only. But what is the rationale behind this? कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसे साइन करेंगे, और ऐसा क्यों? प्रेसिडेंट ही क्यों? प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं? जो कॉम्पोजिशन है लोकसभा का राज्यसभा का, वो उसके कारण भी आप बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं साइन करने दे सकते बिकॉज. हाँ जी, बोलिए. ओके. अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ कि किसने बोला था कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आते हैं? आप ही थे आज? अच्छा, आप शुभम आप थे, ठीक है. ठीक है. आज फिर मुझे एक बात बताओ कि क्या प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट के कि नहीं? हाँ. फिर वो एग्जीक्यूटिव हेड कैसे हुए? ये दो दो जगह पे कैसे हैं वो? ये जो प्रेसिडेंट को चूज कर. हाँ जी, प्रेसिडेंट के नाम से पास होते हैं. फाइन. अच्छा, ध्यान से देखिए, इसके ना पीछे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है. प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारा, कौन सा हेड है? गवर्नमेंटल हेड है, पहली बात. ठीक है. तो ये लोग वो लॉज बनाते हैं, उसे प्रपोज करते हैं जो हम चाहते हैं. ठीक है. इसके लिए अच्छा, हमने ये जो डिवीजन ऑफ पावर किया था ना, डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? एनीबडी? वेरी नाइस. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट मैंने क्या पूछा यहाँ? ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ओरिजिन कहाँ से है डिवीजन ऑफ पावर्स का? मॉन्टेस्क्यू नाम के पर्सन का नाम सुना है कभी? सॉरी, आई रोट द डेफिनेशन, वो स्पेलिंग गलत. मॉन्टेस्क्यू. हु वाज दिस? एनीबडी? Okay, he was a jurist from. Okay. I'm not asking this school बच्चों. अच्छा देखिए, this was a French person. So basically जो origin हुआ है ना division of powers का, that came back then in 1748, and it was originated by Montesquieu in a book called The Spirit of Laws. क्या है बुक का नाम? नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स बहुत बार. ठीक है, ये आपके जो कंपेटिटिव एग्जाम्स है ना, इनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो क्या है बुक का नाम? द स्पिरिट ऑफ लॉज. द स्पिरिट ऑफ लॉज, राइट. एंड दिस मोंटेस्क्यू, QIEU, ठीक है. QU, the spelling is still wrong. Let me correct that. QUIEU, something Montesquieu, something ऐसा करके. ठीक है. प्लीज वेरीफाई द स्पेलिंग इफ इट इज स्टिल रॉन्ग. फाइन. सो मोंटेस्क्यू ये पर्सन है, इन्होंने 1749 में एक बुक लिखी थी, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ लॉज. अब इस स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने क्या दिया था? कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स. ठीक है. ग्रेजुअली यूएसए ने क्या किया? इसे अडॉप्ट कर लिया. देन फॉलोइंग अदर कंट्रीज, इंडिया भी उनमें से एक है.
But when it comes to India following division of powers, it is not absolute. How? Can you give me some examples, everyone? कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर जुडिशरी के फंक्शन में कोई और हेड बोल रहा है, या लेजिस्लेचर के फंक्शन में कोई और हेड बोल रहा है, या एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में कोई और हेड बोल रहा है? एंड व्हाट इज दिस? Guys, listen. We decided one thing in the very beginning. Once we'll start speaking, we'll start raising hands. ठीक है, प्लीज, बिकॉज इससे क्या होगा कि somebody who wanted to try, they won't raise their hands. ऐसा ना, तो मतलब if they wanted to speak also ना, sometimes they say get mum there. तो please raise your hands one after the other. I would like to hear it from you all. ठीक है, I want to hear it from you all. There were 3 students who spoke about it, but in the end what happens, only one speaks and other two says कि हाँ चलो ठीक है इसने बोल ही दिया. I want to hear from you all. ठीक है, so we'll start with Ayushi, then we'll go to Shubham, and then I guess Arsh, you were also there, or Vasudhar, it was you. Who was it? Okay, we'll start with Ayushi first. ठीक है, great. Okay, Shubham, you were also saying something. Very nice. Okay, Ayushi, you raised your hand again, or it is by mistake? Oh, great. फाइन. ठीक है, तो देखिए, अब सिंपली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर हेड, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर कर दिया हमने तीनों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को पूरे तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है. अब इट हैज द थिंग टू डू विद योर एक्ट, तभी मैं आप लोगों को ये साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, तो उसमें आपको इजी रहेगा चीजों को अंडरस्टैंड करना. फाइन. तो अभी मैं क्या बोल रही थी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 जो आपके हेड्स है ना, इन्हें क्या कर दिया है, पूरे तरीके से डिवाइड कर दिया. राइट right? क्या बोला है कि डिविजन ऑफ पावर्स में द पावर्स गेट डिवाइडेड. फाइन. तो जो पावर्स हैं दे गेट डिवाइडेड इनटू 3. दैट मींस लेजिस्लेचर विल बी मेकिंग द लॉज, executive will be executing it. And what is the work of judiciary, everyone, please? To interpret the law and yes. ठीक है, so it is basically the watchdog of constitution. So it watches the constitution. Fine. कि whether all the laws are being prepared in accordance with the constitution or not. So इसको हम और क्या नाम देते हैं, protector of constitution. So it is the protector of constitution. ठीक है, सो यहाँ पर एक लॉ बनाएगा, एक उसे एग्जीक्यूट करेगा, और तीसरा देखेगा कि आपने वो लॉ ठीक से बनाया नहीं बनाया. लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडिया में व्हाट वी फॉलो इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. कुछ याद आया इसको सुन के? कभी पढ़ा इसके बारे में कि हम ये चेक्स एंड बैलेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, और चेक्स एंड बैलेंस का कंसेप्ट क्या कहता है आयुषी? ये जैसे लेजिस्लेचर में हम्म. यस. ओके. हम्म. गुड. ठीक है कि
आप ये बोलना चाह रहे हो, अगर इसको सिंपल सरल भाषा में बोला जाए, कि एक पर्सन या एक हेड आपका दूसरे पे ध्यान रखता है, वैसे दूसरा इस पे भी ध्यान रखेगा। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे भी ध्यान देगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे भी देगा। वही यही लेजिस्लेचर और जुडिशरी में यही बात कि ये सब एक दूसरे पे ध्यान देंगे और ये चेक करेंगे कि सभी अपना काम ठीक से कर रहे हैं और एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे अपने अपने काम में। अगर देखा जाए, आप यहाँ पे किसी को एक पूरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दो, एब्सोल्यूटली पावर दे दो कि लॉ मेकिंग पावर बस लेजिस्लेचर के पास है, तो डू यू थिंक कि अगर इसे रेगुलेट ना किया जाए तो लेजिस्लेचर वुड बी मेकिंग एनीथिंग? तो आर्बिट्रेरीनेस आने का थोड़ा चांसेस हैं, येस और नो, राइट? सो ऐसे ही आपको क्या बोला कि योर legislature, you can make this would be useful to you people only, the chart. I'll be making it on the next page. It's your legislature. ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाने का, यस और नो? फंड्स, कि फंड्स कितने किसे मिलेंगे, कौन से डिपार्टमेंट को कितने फंड्स मिलने चाहिए, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड देयर। देन सेकेंड थिंग कम्स, मुझे बताइए एग्जीक्यूटिव हेड के पास क्या पावर होती है कि अगर मान लो वो नहीं साइन करना चाहता तो कौन सी पावर एक्सरसाइज की जा सकती है? यस, विटो पावर। सो इट्स विटो लेजिस्लेशन कि आप मना कर सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस, आई डू नॉट अग्री टू दिस। यस आयुषी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अच्छा ठीक है, आई लोअर इट डाउन, फाइन, ग्रेट, ठीक है। तो देन वी हैव द नेक्स्ट वन। अच्छा, लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर का क्या जुडिशियल अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना है? यस और नो? यस, सो confirms judicial appointments. Can we write it like that? मैंने लिखा confirms judicial appointments. Can we write it like that? Easy? Okay, great. अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका जुडिशरी है ये लेजिस्लेचर पे कैसे चेक मेंटेन करता है? वॉचेस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, यस और नो? जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है? रिपील। डू यू पीपल अग्री विद मी और नॉट? ओके देन। अच्छा, एग्जीक्यूटिव हेड का क्या जजेस से कोई लेना देना या जुडिशरी डिपार्टमेंट में? यस, एंड देन अगेन जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से क्या लेना देना है? ओवरसीज देयर एक्शंस, कि क्या ये आर्बिट्रेरली काम तो नहीं कर रहे हैं, क्या अपनी पावर में रह के काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहे हैं या नहीं, जितना कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें पावर्स दिया उतना ले रहे हैं या नहीं, और कुछ ज़्यादा ही करे जा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है या नहीं है? तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा है या समझ आ रहा है कि हाउ each of the head, legislature, executive or judiciary, are having an impact on each other and they are maintaining a system of checks and balances.
right? Do we agree with this? And is this clear? And if you have noted this, can I scroll it up? ग्रेट, फाइन। अच्छा, अब हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखती है। अब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है तो दैट मीन्स कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन का रियली कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? A legal document which defines the rights and liabilities. Nice. Fine. A legal document. और कोई और व्यू पॉइंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज? यस यस यस, शुभन प्लीज से इट। Okay, it tells that how a state shall be administered and how the departments shall be working. ठीक है, तो ये बताता है हमें कि कैसे एक स्टेट जो है उसे एडमिनिस्टर किया जानती है। एडमिनिस्टर मतलब कैसे वो वर्क करेगी, राइट, एंड कैसे उसके डिपार्टमेंट्स में काम लिया जाएगा या काम करवाया जाएगा। सो अगर मैं इसे और सिंपली डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिखना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज है जो हर एक पर्सन को गवर्न करती है। इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इंडिया में अगर कुछ चीज सुप्रीम ऑफ ऑल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। एवरीबडी विल बी वर्किंग द वे इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विल इट बी एनी हाउ रॉन्ग देन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, I guess somebody has raised their hand. Yes, Shubham. कि आप कोई भी लॉ बनाएंगे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। अब ये क्या टेस्ट है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या बताता है कि हमारा देश कैसा होगा। हमारे देश में इक्वलिटी रहेगी, भाईचारा रहेगा, फ्रेटर्निटी रहेगी, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, सेक्युलर है, सोशल है, और क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड छूट रहा है। हो गया, हो गया। यस, सॉवरेन। सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एनीबडी? इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और एक्सटर्नल सोर्सेस। कि हमको कोई और पार्टी या कोई और, मतलब किसी और कंट्री की पार्टी ऑब्वियसली, या कोई और पर्सन आके नहीं बताएगा कि हमें हमारी कंट्री में क्या करना है। वी आर फ्री टू डू वट एवर वी वॉन्ट, राइट? वी आर फ्री टू डू द वे वी वॉन्ट टू रन आवर कंट्री। फाइन। शुभम, देयर वाज अ क्वेश्चन और द हैंड वाज रेज्ड पहले से ही? ओके, ग्रेट। सो आई विल लोअर इट डाउन। फाइन। ओके स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे कि हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स है ना वो
परेशान नहीं कर सकता है, हम फ्री हैं। इसके बाद आपको इंडिया डिफाइन किया गया कि इंडिया क्या है, उसकी लैंग्वेजेस कितनी है, कितने स्टेट्स होंगे। इसके बाद चलते चलते हम आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन एक्सेट्रा, राइट टू लाइफ अगेन। देन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जो वो, फिर आपके DPSPs आएंगे, देन योर फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसे करते करते कौन प्रेसिडेंट चुना जाएगा, कितने मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट में, जो आपका प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी कितनी होगी, प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आपको लगता है इन्होंने कुछ भी अनटच्ड नहीं छोड़ा है कि आपका कोई भी लॉ कैसे बनेगा? एवरीथिंग इन्होंने सब कुछ बीच में टच किया है कि किसके पास लॉ मेकिंग पावर है, कौन एग्जीक्यूशन करेगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कोई है पार्ट्स जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है या किसी से स्पेशल स्टेटस रिमूव करवाने, जैसे विमेन एंड जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया है या उनके लिए, हाँ यस ठीक है। बिकॉज अर्लियर टाइम्स में क्या किया जाता था, ये दो कैटेगरीज थी जिन्हें ट्रीट किया जाता था अनइक्वली। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, do we follow equality or there is another term that we are following as per the Indian Constitution? Whether it is equality or equity, चलिए मैं टर्म भी लिख देती हूँ। अच्छा, we do follow equality. I have a hand raised. Yes. अच्छा नहीं, fine. ठीक है। अच्छा, you are saying that Ayushi. Yes. हम्म हम्म ठीक है, यू सेड इट करेक्ट बट उल्टा कर दिया। देखिए, अब ध्यान से देखो, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, सबको सेम दे देना। लाइक ईच वन इज गेटिंग अ ब्लॉक। ठीक है, एक हर एक पर्सन को एक ब्लॉक मिलेगा ताकि वो मैच को इजीली देख सके एक दीवार के पार। लेट्स सपोज आपने ये फोटो देखी भी होगी कभी। ठीक है, एक दीवार है, यहाँ पर एक है बहुत ही छोटा बच्चा, यहाँ है एक और बच्चा, ये B पर्सन, और ये है C पर्सन। ठीक है, इसकी हाइट काफी अच्छी है। अब इक्वलिटी तो सेज कि सबको एक एक ब्लॉक दे दिया जाए, तो सबको एक एक ब्लॉक देने के बाद जो ये पहला बच्चा है, ही स्टैंडिंग हियर आफ्टर दैट ब्लॉक। ठीक है, आफ्टर दिस ब्लॉक, अच्छा मैंने इसको थोड़ा छोटा दे दिया था ब्लॉक, हम थोड़ा सा सेम कर लेते हैं। ठीक है, साइज ऑफ ब्लॉक्स, फाइन। ये जो बच्चा है अभी भी ये पार देख नहीं पा रहा। बताइए, ये है इक्वलिटी। ठीक है, कि अब सबको इक्वल दे दो, सबको, राइट। लेकिन इक्विटी क्या कहती है, ट्रीट इक्वल्स इक्वली। अगर मान लो कोई इतनी हाइट के बच्चे तो इन सबको सेम ट्रीट करिए। तो इक्विटी कह रहा है कि अगर इसे 2 ब्लॉक्स की नीड है देखने के लिए तो आप इसे 2 ब्लॉक्स दीजिए, इसे 1 ब्लॉक की नीड है तो इसे आप 1 ही ब्लॉक दीजिए, और इसे अगर ब्लॉक की नीड ऑलरेडी थी ही नहीं तो इसे ब्लॉक देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब है जो इनके बीच का गैप है उसे कम करना, टू रिड्यूस द गैप। सो हम क्या फॉलो करते हैं, वी फॉलो इक्विटी नॉट इक्वलिटी। अब इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी। अभी रिसेंटली हमारे जो टैक्सेस में रिफॉर्म्स आए हैं, हैव यू
ऐसा, are you aware of that? Have you read about it? किस किस चीज पे टैक्सेस, अच्छा हम कार्स के बारे में बात करेंगे सिंपली सीधा। कौन सी कार्स पे टैक्सेस हटे हैं या घटे हैं? हो गया, कितना हो गया? हाँ 28%। लेकिन हाँ हाँ बोलिए। हाँ यस, आप सबको इक्वलिटी देंगे बट ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, नॉट अनइक्वल्स इक्वली। ठीक है ना? अनइक्वल्स को इक्वली, इट इज लाइक कि somebody needs an emergency treatment and somebody just needs a dressing, तो आप दोनों को ही ड्रेसिंग दे रहे हो, दैट इज इक्वल। यस, okay, I have certain hands raised. It is Vasudhar, Shubham, and Ayushi. Please say everyone one after the other. Hmm. Yes. हाँ. यस यस यस, आप ये कहना चाहते हो कि मेटर्निटी जो लीव्स मिलती हैं, है ना? अब नाउ somebody who is going through a lot, अच्छा I'll tell you one more thing guys, this is a fun fact, not according मतलब ऐसा आपके related to your syllabus though, I read it somewhere that it needs at least 2 to 3 years for a woman to recover from a, like after giving a birth, एंड उसकी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो दैट इज द रीजन वाई सम ऑफ द फीमेल्स आर ऐसा ना, कि उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस्ड होते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट टेक केयर आफ्टर दैट, so it requires them almost like 2 to 3 years to recover from it. So that is the reason why this maternity leave thing is there, because see, it is not like कि हम, why are we not giving these kind of leaves to males, why only to females? Just because it is the nature and they need it. Treating every female equally is the equality, right? So treating equals equally is equality, another thing. अच्छा, हम यहाँ देखते कार्स वाले एग्जाम्पल पे, ओके हम उससे पहले बाकियों के एग्जाम्पल भी सुन लेते हैं. वी हैड आई गेस शुभम ऑल्सो देयर. शुभम प्लीज से व्हाट यू हैव टू से. यस, एग्जैक्टली. अब क्या है यहाँ पर कि कुछ लोग अभी उस टाइम पे क्या होता था, बिफोर लाइक योर लगाइए इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस से कुछ टाइम बाद में, some people were treated as untouchables. We wanted to abolish that. अभी I don't think so anybody is doing that in these days. मतलब there would be only very less people of very old age thinking about कि हाँ what caste this person has या what religion this person has. I don't think we do think that. Do you people think about it? मतलब what this person is, what is his caste, मतलब before making friends ऐसा. Do you people watch that also? Or are we having ऐसा पूरा बायोडाटा कि these should be our friends, these shouldn't be? तो what we wanted to achieve has been achieved because they were given us special things, right? Even अभी आपकी क्या है कि if you go to metropolitan cities, mostly both the parents of the children are working, be it the mother, be it the father. So again, it's their choice. Somewhere it is like opposite. The male is staying at home taking care of the children nowadays, it's very common, and the female is going out earning well for this family. Again, there is nothing called ki these are gender biased duties.
कि the females will cook and the males will have to earn anyhow. It is nothing sort of that gender biasness now. Maybe in some areas of the world it would still be there. देखिए, I won't say कि males की life is very easy, I won't say कि females की life is very easy. Both have their own difficulties and stuff. She's not getting into that honestly. The thing is कि what constitution follows is what we were discussing is all about कि हमारा जो constitution हमें देता है वो देता है equity, कि जो unequals हैं उन्हें इक्वली ट्रीट मत कीजिए बट इक्वल्स को इक्वली ट्रीट कीजिए. लाइक अगर कोई इतनी हाइट का बच्चा है तो आप उन दोनों को 2-2 ब्लॉक्स दीजिए, बट अगर इस हाइट के बच्चे को एक ही ब्लॉक चाहिए तो आप दीजिए, इसे नीड नहीं है तो मत दीजिए. सिमिलरली आई वाज देयर ऑन द कार्स के एग्जाम्पल. अच्छा, किसी कार पे जीएसटी बढ़ा भी है, कौन सी कार्स हैं वो? यस, बहुत दिल दुखा था मेरा. ठीक है ना? तो लग्जरी कार्स पे दे हैव मेड इट कितना परसेंट? यस, 40%, एंटायर 40%. अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे का रीजनिंग किसी ने समझा? कोई ऐसा पर्सन जो मुझे इसके पीछे का रीजनिंग बताना चाहेगा? आयुषी, यू हैव योर हैंड रेज्ड, डू यू वांट टू टेल मी दैट? ओके, नो, गुड, ठीक है. अच्छा, इसके पीछे का रीजनिंग, एनी बॉय हु इज ऐसा इंटरेस्टेड इन दिस कार का वो? Yeah. कि जो आपकी लग्जरी कार्स हैं दीज आर बेसिकली द इम्पोर्टेड वंस. एंड सेकेंड थिंग इज कि आपकी जो मतलब हमारे जो इंडिया है इसमें मोस्टली पीपल आर ऑफ व्हाट कैटेगरी? आउट ऑफ द रिच मिडिल एंड पुअर कैटेगरी में से मोस्टली हाँ मोस्टली आर मिडिल कैटेगरी में. सो दिस इज क्योंकि कार अब आज के टाइम के लिए क्या है, एक नीड है. राइट कि आपके पास कार एज इन कोई भी व्हीकल, बीट बाइक स्कूटी, उन्होंने सब पे रिबेट दिया है. ठीक है, कोई भी व्हीकल जो आपका 10 लाख से नीचे का कॉस्ट करेगा या बेसिक उसका कुछ उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिए हैं कि इतने का इंजन होना चाहिए ऐसा ऐसा करके. ठीक है, तो अगर आपका इंजन उस स्पेसिफिकेशन से कम पावर का है, कम सीसी का है, स्पेसिफाइड थिंग्स, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए जो टैक्स है वो 10% से घट चुका है, अब इट इज 28% नाउ. ठीक है, सो अभी क्या है, बाइक स्कूटी या कार्स क्या है, एक काइंड ऑफ नीड बन चुकी है इन द सोसाइटी. बट लग्जरी कार्स आर नॉट द नीड्स. सेकेंड थिंग इज दे आर इम्पोर्टेड टू. अभी आप क्या है कि आप अपने जो देश में जो बन रहा है उसको छोड़ करके यू आर इम्पोर्टिंग थिंग्स. फाइन. सो यहाँ पर अच्छा, सेकेंड रीजनिंग इज यहाँ पे व्हाट आई फेल्ट माई सेल्फ वॉज, आपने देखा था कि व्हाट वी डू इन द टैक्स सिस्टम इज बेस्ड ऑन कि हमें जो ये गैप है बिटवीन रिचेस एंड पुअर्स इसे कम करना है. हैव यू रेड इट इन दी ऐसे अर्लियर क्लासेस कभी बचपन में कि हमें जो ये रिच और पुअर का गैप है ना इसे कम करना है, ऐसा है हमारा टैक्स सिस्टम. तो कैसे कि मान लीजिए रिच के पास भी अभी रिच कैन स्पेंड, तो दे विल स्पेंड 10% एक्स्ट्रा, उनको क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, एंड पुअर्स कैन हैव कार्स नाउ. तो एवरीथिंग एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन सेगमेंट. पहले क्या था कि जो मिडिल सेगमेंट थी या पुअर सेगमेंट थी वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम भी कार लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्सेस. कि दिस हैज गिवन अ हाइक इन दी, ऐसे बोलो कि मेनी पीपल हैव बॉट न्यू व्हीकल्स फॉर देमसेल्व्स और आर गोइंग टू बाय इट for this reason. So this will bridge a gap between this कि poorers are becoming more poor, richers are becoming more rich. वो वाला gap को एक बार को क्या कर दिया, रोक दिया कि नहीं, if you are buying a luxury car that means you are a rich person, you can afford it, so you have to pay more. You are a person of the middle class or poor class who cannot afford it, so fine, you get a rebate and so that you can afford it now. So this is bridging the gap between that. Another, अच्छा लिविंग दैट, अभी मुझे एक बात बताओ, अभी जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, अब इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारी सेगमेंट्स हैं कि कैसे देश चलाया जाएगा, कौन उसे चलाएगा, कैसे लॉ बनाया जाएगा, कैसे उसे हटाया जाएगा, कैसे किसी पर्सन को हटाना है, क्या फंडामेंटल राइट है, क्या ड्यूटी है, देश है क्या, उसमें स्टेट कितनी, भाषाएं कितनी, और कौन से चीज पर लॉ मेकिंग पावर किसके पास है. ये कौन से स्केड्यूल की बात कर रही हूँ मैं,
कि कौन सा सेगमेंट किसके पास फॉल करता है, कौन से स्केड्यूल में बातें की हैं इसकी। हाँ, 7 शेड्यूल या शेड्यूल। 7 शेड्यूल किस बारे में बात करता है? यस, ऑल द लिस्ट। अब ये लिस्ट है किस चीज की? स्टेट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है, ये मैं समझी। लेकिन ये लिस्ट बात किस चीज की कर रही है? लेट्स सपोज विल मेक इट कंकरेंट एंड सेंटर हियर, ठीक है। कंकरेंट दोनों की इकट्ठी होती है ना, तो उसे बीच में लिखते हैं। हाँ, अब बताइए ये लिस्ट बात किस चीज की कर रही है? लिस्ट तो दे दी, लिस्ट है किस चीज के लिए? ये जो लिस्ट है ये क्या बोल रही है? लॉ मेकिंग पावर के बारे में। देखिए, हमने अभी अभी पढ़ के आए थे कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है ना, वो कैसे होती हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। लेकिन हमारे इंडिया में एब्सोल्यूट डिवीजन ऑफ पावर तो फॉलो ही नहीं करी जाती है, ठीक है। तो हमारे अभी हमने देखा था हमारे यहाँ क्या चलता है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। और उसकी पावर कहाँ दी है हमें, उसके बारे में बताया कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में खुद। हमने फिर देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7 शेड्यूल है वो हमें बताता है कि पावर्स किसके पास कौन सी है। अब ये जो लिस्ट है ना, ये 3 लिस्ट है आपको, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, कंकरेंट एंड सेंटर। इसमें वो लिस्ट दी है कि आपके जो स्टेट लॉज हैं वो कौन, जो स्टेट है आपके, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन से एरियाज पे लॉज बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से एरियाज पे लॉ बनाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हमारे पास कैसा गवर्नमेंट सिस्टम है, डुअल गवर्नमेंट है। हमारे पास सेंटर भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, यस और नो स्टूडेंट्स? हाँ, हमारे पास डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट है तो दोनों लॉज भी बनाएंगे। अब हो सकता है कि स्टेट ने पहले कोई लॉ बना रखा हो, सेंटर उस पर लॉ बनाने आ जाए, या सेंटर ने पहले कोई लॉ बना रखा हो, स्टेट बोले अब इनमें कोई झगड़ा हो जाए। तो क्या किया इन्होंने, लिस्ट ही बना दी कि देखो सेंटर तुम्हारे लिए ये पावर्स हैं, स्टेट तुम्हारे लिए ये पावर्स हैं कि तुम इन्हें एरियाज में लॉ बनाओगे, तुम इन्हें एरियाज में। जैसे हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, कि हमारे दिल्ली में रिबेट मिलती है 200 यूनिट्स के ऊपर एंड मिलती है पंजाब में 300 यूनिट्स के ऊपर की रिबेट। अब दैट हैज ओनली, जो इलेक्ट्रिसिटी का थिंग है ना, दैट थिंग इज हैंडल्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ, इट इज नॉट हैंडल्ड बाय द कनकरेंट थिंग। तो यानी तभी आपको एरिया वाइज डिफरेंट लॉज देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी लॉ मेकिंग पावर किसके पास आ गई, स्टेट के पास। देन डिफेंस जैसी चीजें, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, लैंड है, एनीथिंग, सक्सेशन है, अडॉप्शन है, ऐसी कोई भी चीजें आपकी होगी ना, अडल्टरेशन है, अडल्ट्री वो जो होती है अडल्टरेशन फूड की। अब ऐसे जो मैटर्स हैं, ये सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने कनकरेंट उधर कर दिया था ना। अभी पहले सेंटर पे आ जाओ, ठीक है। सेंटर में क्या बोला मैंने, डिफेंस का सिस्टम हो गया, आपका फॉरेन अफेयर्स हो गए। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो आयुषी? हाँ, रेलवेज आ गई आपकी। देन आपका आ गया मान लो वॉर एंड पीस का थिंग्स हो गई सारी, बैंकिंग सिस्टम आपका, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन करेंसी, आपकी इंडियन करेंसी या वॉट एवर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है कि ये इंडिया के लेवल पे चलती हैं। तो ये सारे लॉज मेकिंग पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ आपके सेंटर के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों पे, डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर्स पे, वॉर या पीस मेंटेन करनी है, बैंकिंग हो गया, आपके फॉरेन करेंसीज हो गई, या फॉरेन ट्रेड हो गया, या करेंसी है, या एनीथिंग, रेलवे है, ठीक है, साक्षी ने बताया। तो इन चीज़ों पे लॉज कौन बनाता है, सेंटर। अच्छा, अब एक तीसरी लिस्ट है हमारे पास, कनकरेंट लिस्ट, जिन पे दोनों मिलके लॉज बना सकते हैं, दोनों मिलके लॉज बना सकते हैं। और वो क्या क्या है बोलोगे प्लीज, क्या क्या बचा हमारे पास स्टेट में? चलो बता देती हूँ, आपके पास स्टेट में क्या क्या आपके पास, एग्रीकल्चर आ जाता है, हम्म, टैक्सेस, ओके, और यस, जैसे कि
Yes. There is what I wanted you people to tell me. Kindly repeat yourself, beta, so that everybody else can also hear that again. Yes. Hmm. Yes. हाँ जी बोलिए यू कैन कंप्लीट योर सेल्फ, आई एम सो सॉरी. ओके राइट. ठीक है. तो अभी इस चीज से क्या समझे आप लोग कि जो पुलिस रिलेटेड मैटर्स हैं वो कौन डील करेगा. ओके. देखिए लिस्ट के हिसाब से तो इट हैज टू बी गवर्न्ड बाय द स्टेट, बट क्या सेंटर का इसमें कोई सेइंग है. बोलिए. हम्म. ठीक है, ध्यान से सुनिए. अब देखो क्या बोला. यहाँ पे आपका डिफेंस फोर्सेस आ गई वो सारा. अभी कुछ एरियाज में, अब कल ना मैं आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन कराऊंगी इसका थोड़ा, जिसमें आपको और समझ आएगा कि जो यूपी का पुलिस एक्ट है वो कैसे बना था. अभी के लिए हमें ये समझना जरूरी था कि फॉर दिस रीजन यहाँ पर जो स्टेट है ना, अब यूपी पुलिस एक्ट, यूपी का अपना पुलिस एक्ट, ठीक है. तो इट इज अ थिंग ऑफ द स्टेट फॉर वंस कि आपकी जो स्टेट है वो लॉज बना सकती है पुलिस रिलेटेड, ठीक है. लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देयर लिटिल बिट, बिल्कुल थोड़ी सी इंटरफेरेंस है सेंटर की भी. फाइन. अब इसके बारे में विल बी स्टार्टिंग टुमारो इन डिटेल कि ये जो इंटरफेरेंस है हाउ दिस वर्क्स, वेयर फ्रॉम वेयर दिस यूपी पुलिस एक्ट ओरिजिनेटेड, what was its history एंड वट आर वी गोइंग टू रीड अबाउट इट टुमारो. एंटायरली मैं आपको बताऊंगी. तब तक बस अपने कॉपी में एक हेडिंग बना लो, द पुलिस एक्ट, 1861, और यहां लिख लो एक्ट नंबर 5 ऑफ 1861. एक्ट नंबर 5 ऑफ 1861. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 47. Total number of sections are 47 year. Right? And this act was passed on. Passing date क्या है इसकी? 22nd March 1861. So it is 22nd of March 1861 when this Police Act was what? Passed. ठीक है. अब इसमें अच्छा, जनरली स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, जो हमारा सेक्शन 1 होता है उसमें क्या क्या लिखा होता है. हाँ, टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट. और जो सेक्शन नंबर 2 है वो क्या बताता है. सेक्शन, हाँ, डेफिनेशन. बट जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे ना, इसमें इंटरप्रिटेशनल क्लॉज ही सेक्शन 1 में दे रखा है. इसके बारे में कल सारा डिटेल में करेंगे हम, ठीक है. विल बी स्टार्टिंग दैट आर एक्ट एंड द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ इट टुमारो इन डिटेल. आई बी मेकिंग यू राइट एवरीथिंग. देखिए आज वाला जो कंसेप्चुअल था आपका जो लेक्चर था ना, बट कल से आपको क्या करना है, यू शैल बी वेरी मच रेडी विद योर सेल्फ. ऐसा कि अपना जो कॉपीज एंड पेन है ना उसे बिल्कुल हैंडी रखो, बिल्कुल रेडी रखो, ताकि यू कैन नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए इसमें से तो यू कैन आंसर दैट वेरी वेल. ठीक है. अब हमें जो भी छोटी मोटी, आई नो यू न्यू 90% ऑफ द थिंग्स, 80% ऑफ द थिंग्स, बट जो हमें वो 10-20% का कंफ्यूजन हो जाता है ना आगे चल के, वो कंफ्यूजन हटाने के लिए आज की बेसिक क्लास वाज वेरी मच नीडेड. सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा. डू यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस अभी तक.
आयुषी, दैट विल बी नोटिफाइड टू यू इन द ग्रुप इटसेल्फ बेटा, ठीक है? That works according to the schedule, so everything would be shared to you in the group itself, or you can contact the number also for confirming the details and stuff. Okay? Yes. Yes. हाँ, मैं सारा कुछ करवाऊंगी आपको इस एक्ट के बारे में, कि आपको बोला ना मैंने, हिस्टोरिकल पार्ट से लेके अभी तक जो एवोल्यूशन है ना इसका सारा, आई विल बी मेकिंग यू राइट एवरीथिंग, डोंट वरी। आज वाले पोर्शन में हमने वी हैव डिड नथिंग, आई विल बी रिपीटिंग ऑल ऑफ दिस ऑल्सो अगेन, राइट? कि जो हमने लास्ट में ये लिखा ना, ये वाला पोर्शन इवन, तो आई विल बी रिपीटिंग इट एवरीथिंग अगेन, ऐसा करके। मतलब द मेन एक्ट वुड बी स्टार्टिंग टुमारो, टुडे इज द बेसिक थिंग एज आई हैव टोल्ड यू इनिशियली ओनली, बिल्कुल स्टार्टिंग में कि विल बी डूइंग द बेसिक थिंग्स। हमारे जो कंसेप्ट हैं उसकी क्लैरिटी रखेंगे हम आज, ताकि हमें ये समझ आए कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे किस व्यू पॉइंट से, राइट? फाइन। और कोई क्वेश्चन एनीबडी? ओके, आयुष। यस शुभम। Not, not yet, not yet. I'm telling you that only, not yet. But we are being prepared. ऐसा कि everything what could come in the exam will be completing each of it. Will be completing everything before ऐसा time. Suppose it कि आपका जो सिलेबस है वो आपको आउट किया जाता है, लेट्स सपोज अभी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो अभी मान लो व्हाट वी कैन कवर इन दीज डेज दैट वुड बी ऑल वेस्टेड, राइट? सो हम एक एग्जाम्पशन लेके कि जो लास्ट ईयर से चलता आ रहा है बेस्ड ऑन दी ऐसा पूरा ऊपर रिसर्च, वी हैव टेकन आउट द सिलेबस जो बन सकता है, प्लस सम एक्स्ट्रा थिंग्स ऑल्सो जो इस टाइम पे आपकी पूछी जा सकती है, राइट? तो विल बी कवरिंग एवरी थिंग अकॉर्डिंगली, सो दैट हमारे पास कोई स्कोप ऐसा। हाँ जी आयुषी। हाँ, मेजरली आपको ना सारी लिस्ट ना सर बता देंगे। यू आस्क एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दिस फ्रॉम कृष्णा सर, फाइन। तो वो आपको इन डिटेल आपको सारा कुछ इस पे गाइड कर देंगे कि व्हाट ऑल थिंग विल बी कवर्ड, व्हाट वुड बी द शेड्यूल, एवरीथिंग वन बाय वन प्लीज। यस। आयुषी, you'll be given the recordings, you'll be allotted the recordings, ठीक है? From our side only on the app itself. I cannot allow you to record that, okay? So you'll be given the recordings from our side, don't worry. Yes, Vasudhar, and then I'll listen to you, Shubham. I do remember you. हाँ जी वसुधर। यस यस एवरी, हाँ जी, तो क्या आप दोबारा बोलिए। ऑफिशियल नहीं है मतलब? यस यस, देखो वट एवर वी वुड बी कवरिंग इन इज ना, दैट वुड बी यूजफुल टू यू, डोंट वरी, वी आर नॉट कवरिंग एनीथिंग ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स, ओके? डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब रिस्पेक्टिवली आई वाज आस्किंग यू पीपल अबाउट द डाउट्स ऑफ द क्लास वैसे तो, ठीक है? तो अभी मुझे बताओ कि इस टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट किसी और को? एनीबडी? And Shubham, you were saying something. You got interrupted. Tell me what you wanted to ask. And Vasudhar, is your doubt clear? हाँ जी। बच्चे देखिए, अगर कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे रिपील किया ही जाएगा, राइट? तो मान लो कोई भी ऐसा लॉ बना हुआ है जो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपसे ले रहा है, तो दैट थिंग वुड बी कंसीडर्ड, मतलब ऐसा कि हैविंग नल इफेक्ट, as it would be repealed by following the due process of law, ठीक है? ओके शुभम, प्लीज से।
थोड़ा सा जल्दी से। यस यस। हाँ, yes, yes, yes. Everything would be there, and all the stages also for all the respective subjects, all the respective topics, or all the respective exams you are targeting. आप ना सर को बोलिएगा इसके लिए, तो सर आपको ना सारी चीजें शेयर कर देंगे, ताकि ना देखिए, आई एम हियर ऐसा कि जो आपके स्टडी मैटर के जैसे स्टडी मटेरियल है ना, उसके रिलेटेड डाउट्स जो आपको ऐसा कि रिकॉर्डिंग्स कब मिलेंगी, कैसे मिलेगा सिलेबस, ये वो, कि आप मुझे एक ऑफिशियल कॉपी दे दीजिए, इसके लिए आप प्लीज सर को वो करेंगे मैसेज, सर आपको सारा गाइड कर देंगे इजीली, ताकि यू गेट अ बेटर गाइडेंस, ऐसा बिल्कुल इन डेप्थ। ओके, यस आर्यमन। यस यस। Don't worry, Ariman, you will be given the lecture ka recordings also, and everything would be provided, every help, whatever would be possible from our side, and all the very best for your test. विश यू गुड लक। ठीक है, डू गुड। ठीक है, और हाँ, आपको कोई भी ऐसा डाउट हो, ठीक है, जो सिलेबस के रिगार्डिंग है, क्लासेस के टाइमिंग्स के रिगार्डिंग है, देखिए जो मैनेजरियल थिंग्स हैं उसके लिए यू शुड कॉन्टैक्ट सर, ही वुड बी अ बेटर पर्सन टू गाइड यू विद दैट स्टफ। फाइन, तो आप लोग मुझसे पूछेंगे क्लास रिलेटेड डाउट्स। ठीक है, तो अभी क्लास रिलेटेड कोई और डाउट, और शैल आई वाइंड अप द क्लास देन? ठीक है, so that is it for your class students. That was really a lovely session, and thank you so much for participating in each step. And that's it for today's class. We'll meet again tomorrow, or the scheduled timings, everything would be notified to you people in the group itself. See you soon, guys. Bye bye. Thank you so much for the session. Welcome. You're welcome, everyone. शेयर कर दिया मैंने ना आपको लिंक, बस ना बच्चों के थोड़े से ज्यादा डाउट थे इसमें।